Let's open your mouth and pray. अपने लबों को खोलिएगा और दुआ कीजिएगा। Let's open your mouth and pray. अपने लबों को खोलिएगा और दुआ कीजिएगा। Hallelujah. Hallelujah. For you and what Take charge of my mouth, my thinking, of my language. Thank you, Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, we come to the face. We enter through Jesus into the realms of Jesus. I am the door. Come through the door that is closed. Father, we thank you for the great reward, great gift called Jesus. Thank you, Holy Spirit. You give us access to the realms of God, Amen. to understand God. Thank you, Holy Spirit. You give us utterance. You give us power. You give us dominion over powers and principalities. Thank you, Jesus Christ, for dying on the cross. Father, as we teach and preach today, let thy hand of power come upon every child of God so that they can understand Jesus more. Let that word become flesh in their lives. Father, give them more understanding. In the mighty name of Jesus the Christ. Amen. Amen. Shalom. God bless you. शालोम, खुदावंद आप सबको बरकत दे Keep sharing it. और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। Today, we will learn about the anointing. और आज हम सीखने वाले हैं The anointing. मसा। What the Bible says about the anointing और कलाम मुकद्दस मसा के बारे में क्या कहता है and what exactly the anointing is. और असलियत में मसा है क्या। Today, I'm not teaching you about the anointing. और आज मैं आपको सिर्फ मसा के बारे में नहीं बताऊंगा I will not teach what the people teach to you. और मैं वो नहीं इस चीज की तालीम नहीं देने वाला जो कि लोग आपको तालीम देते हैं They already teach about anointing. और वो पहले ही आपको तालीम दे चुके हैं मसा के बारे में। But today my topic is the understanding of the anointing. और आज का जो हमारा उन्वान है वो है मसा के बारे में समझ। The understanding of the anointing. और मसा के बारे में अक्लो समझ। Understanding of the anointing. और मसा के बारे में अक्लो समझ। Let me start with this. और मैं इसके साथ शुरू करना चाहूंगा। Many people are called and many people are anointed today. और आज के वक्त में बहुत से लोग बुलाए गए हैं और बहुत से लोग मसाशुदा हैं। Yes, they are anointed. जी, इस बात में कोई शक नहीं कि वो मसाशुदा है। Yes, हाँ, they are anointed. वो मसाशुदा है। Yes, they are doing things. और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो काम कर रहे हैं। Now a generation I saw और जिस जनरेशन को मैंने देखा and the dispensation which we are living in, हम रह रहे हैं I saw one thing. और मैंने एक चीज देखी
The people are running after anointing. और मस्सा के पीछे लोग आज भाग रहे हैं, They are running to the anointing भाग रहे हैं मस्सा के पीछे, without understanding the anointing. लेकिन उस मस्सा की समझ के बगैर There is a difference between anointing and the understanding of anointing. और मस्सा की समझ दो मुख्तलिफ चीजें हैं। Today, I was in the prayer. और आज के दिन जब मैं के दुआ में था I was praying, और मैं दुआ कर रहा था and Lord revealed me a lot of things और खुदा ने मुझ पे बहुत सी चीजें वाज़ेह की about the anointing. मस्सा के बारे में। The whole last week, और पिछला गुज़श्ता पूरा हफ्ता while I was seeking the face of God, और जब मैं खुदा के चेहरे की तरफ देख रहा था, the Lord shared this thing with me. The focus was the Spirit, was the understanding of the Holy Spirit. और खुदा ने मुझ पे कुछ चीजें आया कि अपना फोकस रखना है और किस तरह से हमने मस्सा की समझ हासिल करनी है, Understanding of the Holy Spirit and the understanding of the anointing. और पाकरू की समझ और मस्सा की समझ। Many people nowadays, और आज के दिनों में बहुत से लोग they are running after anointing and मस्सा getting के it, पीछे भाग रहे हैं, जो मैंने देखा है, but they are not understanding the anointings. और उनमें ये समझ नहीं है उनके मस्सा के बारे में। So today's teaching, आज की जो टीचिंग है, today's message will surely bless your life. इसमें कोई शक नहीं कि आज का जो पैगाम है वो आपको बेहद बरकत से माला माल करने वाला है। So today I started with the topic of understanding of the anointing. और आज जो मैं अपना उन्वान शुरू करने वाला हूँ वो है मस्सा की समझ। So our main scripture will be Acts, the book of Acts, chapter number 10 and the verse number 38. और अमाल उसका 10 बाप और उसकी 38 आयत हम देखेंगे। Let's read what the Bible says. और कलाम मुकद्दस क्या कह रहा है? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुदुस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। Let's say a prayer of word. Let's और say हाँ, a word हम of दुआ prayer. के कुछ अल्फाज बोले। Father, बाप, please मेहरबानी कीजिएगा, have mercy on us. हम पर रहम कीजिएगा Have released your grace. और अपने अपने फजल को हम पर जाहिर कीजिएगा। Oh Lord, release your grace अपना फजल हम पे भेजिए so that we can understand your word. ताकि हम तेरे इस कलाम को समझ सके। Jesus, यीशु our Savior, और हमारे निजात दहिंदा, you opened the door. और तूने हमारे लिए दरवाजे खोले You opened it. और हमारे लिए खोल दिए। Lord, बाप, give us grace to understand और you. हमें वो फजल बख्श के हम तुझे समझ सके। We know one day we will be with you. और हम जानते हैं कि एक दिन हम तेरे साथ होंगे, Give us grace और हमें वो फजल बख्श so that we will not regret of anything. और हम किसी भी चीज के बारे में पछताए मत। Give us grace to understand your word. और हमें वो फजल बख्श के हम तेरे अल्फाज को समझ सके। Holy Spirit of God, और खुदा के पाकरू help us. हमारी मदद कीजिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। The Bible says, कलाम कहता है how God तो कैसे खुदा ने anointed Jesus of Nazareth और यीशु नासरी को मसा किया with the Holy Ghost पाकरू से and with और ताकत से, who went about doing good. और वो भलाई करता था। Who कौन? went about doing good, और जाता था भलाई के काम करने के लिए, healing all और वो सबको शिफा देता फिरता था
that were oppressed of the devil. और वो सब जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे, For God और खुदा उसके साथ था, was with him. और खुदा उसके साथ था। Let's read another scripture. हम एक और हवाला पढ़ेंगे, The book of Psalms, और जबूर, chapter 42, और हम उस 42 जबूर निकालेंगे, chapter number 42, और 42 जबूर निकालेंगे, and the verse number 7. और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। Deep calleth unto deep the noise of thy water spouts. All thy waves and thy billows are gone over me. तेरे आबशारों की आवाज से घेराव घेराव को पुकारता है, The deepest calleth a deep. और तेरे आबशारों की आवाज से घेराव घेराव को पुकारता है। Deep गहरा calleth unto deep. घेराव घेराव को पुकारता है। Why people are coming to you? और क्यों लोग आप तक आते हैं? Why you are going to those people और क्यों आप उन लोगों तक जाते हैं who are anointed? जो लोग मसाशुदा हैं? Why anointing is attracting you? और क्यों आज जो मसा है वो आपको अपनी तरफ उभार रहा है? Why anointing is attracting you? और क्यों मसा आज आपको अपनी तरफ उभारता है, कशिश डालता है? Why you are going to those people who are anointed by God? और आप क्यों उन लोगों तक रसाई चाहते हैं जो लोग खुदा के मसाशुदा हैं? Let me explain one thing. और एक चीज को मैं वाजिया कर दूं, According to this deep scripture, और इस बहुत ही गहरे कलाम के मुताबिक, this psalm, और ये जो जबूर है, Psalm 42, 42 जबूर, this is the psalm of the trust of a believer. और एक जो ईमानदार है उसकी पुकार है ये, He is thirsty. और वो उसकी प्यासा है, वो एक He is thirsty. ईमानदार, और वो ईमानदार की प्यास को जाहिर कर रहा है, There is a hunger in him. और उसके अंदर भूख है, He is thirsty. और वो प्यासा है। Now he's saying deep calleth unto deep. और इस जबूर में वो कह रहा है घेराव घेराव को पुकारता है। Why you क्यों आप are हैं approaching to those people उन लोगों तक पहुंच हासिल करना चाहते हैं who are anointed by God? जो खुदा की तरफ से मसाशुदा है? Because क्योंकि there is something deep in you आप में कुछ बहुत गहरा है, that is going to the deepest one. और वो आपको उस गहरे शख्स तक लेके जा रहा है। The more you are deep inside, और जितने गहरे आप अंदर होंगे, the more deep you will know Jesus of you. और उतने ही गहरे तौर पर आप यीशु नासरी को जान सकेंगे। Oh Lord, help us. Deep calleth unto deep. और घेराव घेराव को पुकारता है। So this is a cry of the deep. और ये है गहराव का रोना, The voice of the deep. और गहराव की आवाज। There is a voice of deep in you. आप में जो गहरी चीजें हैं ये उनकी पुकार और आवाज है। The deep thing inside of you. और जो गहरी चीज आपके अंदर मौजूद है, He is calling to the deep things. और वो चीज गहरी चीजों को पुकार रही है। Let's me take this scripture and let's read the exact main story of Acts chapter number 10. और आए हम इस हवाले को भी जहन में रखेंगे, और अमाल उसके 10 बाब में जो कहानी है वो भी देखेंगे। This is a story of Cornelius. और वो है कहानी कर्नेलियस की, He was a man. और वो शख्स है। Let's read about it. हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Acts chapter 10 verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। Believe this word of God मेरा ईमान है कि आज का कलाम will give you more understanding और आपको और ज्यादा समझ अता करेगा about anointing. मसा के बारे में। There was a certain man. और वहां पर कुछ खास शख्स थे। There was a certain man
Caesar- Syria कैसरिया called में Cornelius, कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था, a centurion of the band called the Italian band. और वो उस पलटन का सूबेदार था जो इटालियन कहलाती है, A devout man. और वो दयानतदार था। See the character of this man. और इस शख्स के किरदार को देखिएगा, Devout man. और वो दयानतदार था And one that feared God. और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था, All his house, which gave much alarms to the people and prayed to God always. और वह यहूदियों को बहुत हैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। Good man, और एक दीनदार शख्स, devoted man, एक दीनदार शख्स और एक अच्छा इंसान fearing God man. और खुदा से डरने वाला, This is a man who fear from God. और खुदा से डरने वाला शख्स, His whole house, उसका सारा घराना they are with God. वो खुदा के साथ थे, And he's a man of prayer. और वो दुआ करने वाला शख्स था। Verse 3. और तीसरी आयत में He saw in a vision उसने रोया में, Cornelius is not baptized yet. और अभी तक उसको बपतिस्मा नहीं हुआ, He is not aware of things of God. और वो खुदा की चीजों के बारे में अभी तक जान नहीं सका। Why I'm saying the things of God? क्यों मैंने कहा खुदा की चीजों के बारे में? Because in that time, क्योंकि उस वक्त में the Holy Spirit was at move, और पाक रूह गहरे तौर पर हरकत कर रहा था, like today. जैसे आज करता है। This man, और वो शख्स, nobody lay hand on him, और किसी ने उस पे हाथ नहीं रखा, nobody trained him, और किसी ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, nobody baptized him. किसी ने उसे बपतिस्मा नहीं दिया, He was not in the church. और वो उस चर्च में भी नहीं था, He can still see a vision. और वो अभी भी रोया देख रहा है, He saw a vision. और उसने एक रोया देखी। Evidently, about the 9th hour of the day, an angel of God coming to him. और उसने तीसरी पहर के करीब रोया में देखा खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है। Now the angel is coming in a vision once. एक दफा रोया में खुदा का फरिश्ता उसके करीब आ रहा है, He is in a vision, keep in mind, और जहन में रखिएगा, रोया में, in a vision. रोया में, And saying unto him, Cornelius. और उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, उसने कहा, फरिश्ते ने उससे कहा, करनेलियस। Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, और उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, What is it, Lord? और खुदावंद क्या है? And he said unto him, My prayers and thine alarms are come up for a memorial before God. और उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। Mhm. And now और अब send men आदमी भेजकर to Joppa याफा में, and call for one Simon. और शमौन को, जो पतरस कहलाता है, Whose surname is Peter. He lodged with one Simon a Cana, whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou hast. और शमौन दबाग के हाँ मेहमान है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। Mhm. और जब वो फरिश्ता चला गया, And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants and a devout soldier of them that waited on him continuously. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. और जब वो फरिश्ता चला गया, और जिसने उससे बातें की थी, उसने दो नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे
एक दीनदार सिपाही को बुलाया। So this is the first part of the story. और ये है पहला हिस्सा इस कहानी का। A man feared God, और एक शख्स जो खुदा से डरता है, a man who prayed, जो दुआ करता है, a man और वो आदमी who is not baptized, जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया उसने, who is not filled with the Holy Spirit. और जो अभी तक पाक रूह से नहीं भरा, He's seeing the vision, और वो देख रहा है एक रोया, angel, और उसमें एक फरिश्ता, angel. और उसमें एक फरिश्ता। And if you see the whole story, और अगर आप पूरी कहानी का जायजा लें, he was the man who was doing the ministry work. और वो शख्स था जो कि उस वक्त में अपने मिनिस्ट्री का काम कर रहा था। And why I'm saying ministry? क्यों मैंने ये लफ्ज मिनिस्ट्री इस्तेमाल किया? Because he was doing the ministry. क्योंकि वो उस वक्त मिनिस्ट्री का काम कर रहा He था, know God वो खुदा को जानता था, and he was doing his work और वो अपना काम कर रहा था without knowing anything, without understanding anything. और कोई भी काम किए बगैर, कोई भी चीज को समझे बगैर। Let's read from verse 9. और 9वीं आयत से पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के वक्त कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानित चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और वो उससे एक आवाज आई, ऐ पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, आए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराए तूने हराम ना कह। तीसरी बार ऐसा ही हुआ और फियल फोर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी है, तो देखो वो आदमी जिन्हें करनेलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाजा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठ कर नीचे जा और बेरखट के उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। पतरस ने उतरकर उन आदमियों से कहा, देखो जिसको तुम पूछते हो वो मैं ही हूँ, तुम किस सबब से आए हो? उन्होंने कहा, करनेलियस सुबादार जो रास्तबाज और खुदा तरस आदमी Righteous. और रास्तबाज। Now see, अब देखिएगा, this is a second part of the story. और अब ये दूसरा हिस्सा है उस कहानी का। This man Peter और ये शख्स पतरस, also seeing a vision. और वो भी देख रहा है रोया, He is the filled with the Holy Spirit और वो पाकुर से भरा हुआ है, and he is the witness of Christ और वो यीशु मसीह का गवाह है, and he knew Jesus. और वो यीशु को जानता है, He lived with Jesus. और वो यीशु के साथ रहता है, He ate with वो Jesus. यीशु के साथ खाता है, He know how he walks और वो जानता था कि वो कैसे चलता है, because he walked with him 3.5 years. और वो 3.5 साल उसके साथ रहा। He know वो जानता है his language. और उसकी जुबान को समझता है। But when he saw लेकिन जब उसने देखा a vision एक रोया in the afternoon, और दोपहर के वक्त unclean animals, और जिनको हम हराम जानवर कहेंगे वो he saw, उसने देखे, but these are covered by something और लेकिन वो किसी चीज में लिपटे हुए थे, like a shawl. वो कह सकते हैं हम एक चादर। And God said one thing. और खुदा ने एक चीज को सेट किया, God said one thing. और खुदा ने एक चीज कही। Verse 11. और 11 आए, And saw heaven open, and a certain vessel descending unto him, as it has been a great sheet, knit at the four corners, and let down to the earth. और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानित चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है। In the Jewish tradition, और जो यहूदियों के कल्चर के मुताबिक and according to Jewish teachings, और उनकी तालीमात के मुताबिक, Peter was raised in Jewish house. और जो पतरस है वो पला बड़ा था एक यहूदी He घराने में, knew clean and unclean. और वो जानता था कि साफ सुथरा कैसे रहना, He knew clean and unclean. और वो पाक और नापाक चीजों की समझ रखता था, And he knew God is speaking to him. और वो ये भी जानता था कि खुदा उससे बात कर रहा है। But he saw animals coming down from heaven. लेकिन उसने देखा कि आसमान से कुछ जानवर, कुछ परिंदे उतर रहे हैं, Now he rejected it. और उसने मना कर दिया खाने से। Why he rejected?
क्यों उसने मना किया? Because he saw unclean animals. क्योंकि उसने देखा कि वो जानवर सारे हराम है। And let's see what God said. और फिर देखते हैं कि फिर क्या हुआ, Let's see what God said. और देखते हैं कि फिर खुदा ने क्या कहा। Let's see what God said. और आइए देखें कि खुदा ने क्या कहा। God said something और खुदा ने कुछ कहा है पतरस से in a vision. उस रोया में, That is the most interesting part. और ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। 13. 13वीं आयत, And there came a voice और उससे एक आवाज आई, to him, Rise, Peter, kill and eat. और ए पतरस उठ, ज़िबा कर और खा। But Peter said, लेकिन पतरस ने कहा, Not so, Lord, ऐ खुदावंद, हरगिज नहीं, for I have never eaten anything that is common or unclean. क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। And the voice spake unto him और दूसरी बार उसे आवाज आई, again the second time, और दूसरी दफा उसे आवाज आई, What God has cleansed, और जिनको खुदा ने पाक ठहराया है, that cannot thou command. तो उन्हें हराम ना कह। Person Peter is living on the earth, और जो पतरस शख्स है, एक वो जमीन पर रहता है, but the things are coming from heaven. लेकिन जो चीजें आसमान से उतर रही हैं, The things are more close to God. और जो चीजें खुदा के ज्यादा करीब है, He saw vision, the things are coming from heaven to earth, और उसने रोया देखी कि आसमान से चीजें जमीन की तरफ उतर रही हैं, not from earth to heaven, जमीन से आसमान की तरफ नहीं, from heaven to earth. आसमान से जमीन की तरफ। The more you go closer to God, the more you be cleansed. और जितने ज्यादा आप खुदा के करीब होंगे, उतने ज्यादा पाक साफ होंगे। Now listen, सुनिएगा, the things are coming from heaven, जो चीजें आसमान से उतर रही हैं, the place where God exists, और वो जगह जहाँ पर खुदा क़याम पजीर है, in the place where God is, और वो जगह जहाँ पर खुदा मौजूद है, anything can enter that will be cleansed. और वो जो भी चीज वहां दाखिल होगी, वो बिल्कुल साफ So और these are शफाफ not होगी, entering into heaven. और वो ऐसे गंदगी में नहीं आसमान पे दाखिल हो सकती। These things are coming down from heaven. और अब वो चीजें आसमान से उतर रही हैं जमीन की तरफ। Here is one thing. और यहाँ पर क्या है, एक चीज, Peter, तरस, he is not understanding the sanctification. और वो नहीं समझ रख रखा खुदा के इस निजाम की, This और sanctification. वो तकदीस के इस निजाम को नहीं समझ He रहा, is not aware of the part of sanctification, how God sanctifying things. और कैसे खुदा ने तकदीस के अमल को मुकम्मल किया, वो इसको नहीं समझ रहा। Here Peter misunderstood the vision. और वो रोया कोई इधर उसको समझ नहीं आ रही रोया की। God is saying, खुदा कह रहा है, if I clean something, और अगर मैंने किसी चीज को साफ किया है, you are not allowed to say it is not clean. और तू नहीं कह सकता कि ये चीज हराम है अगर मैंने उसे साफ किया है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Now the Cornelius, और अब करनेलियस, he is doing the ministry. और अब वो मिनिस्ट्री कर रहा है, Is doing the ministry. और वो मिनिस्ट्री कर रहा है, Is doing the work. और वो काम कर रहे हैं खुदा का, Doing charity. और वो वहां पर खैरात कर रहा है, Is doing the things. और वो चीजों को कर रहा है। Is doing things. और वो चीजों को कर रहा है। And he saw angel. और वहां पर वो एक फरिश्ता देखता है, Now he's afraid now. और वो डर गया। Now he went to the house of Simon. और अब वो आया है वहां पर शमौन के घर में। Now listen. सुनिएगा, Where the person Peter is also seeing a vision. और वहां जो शख्स पतरस मौजूद है, उसने भी रोया देखी। Now the two people, अब दो लोग, they saw vision. दोनों रोया देख रहे हैं, Now they are connecting with each other. और अब वो दोनों इकट्ठे हो गए एक साथ। Now the two visions, अब दो तरह की रोया, two persons, दो लोग, one is non-believer, और एक है जो ईमानदार नहीं, one is a disciple. और एक है जो के यीशु का शागिर्द। Two people. दो लोग। Now we need to understand the event now. और अब इस मौके को हमें समझने की जरूरत है। Now we understand the event. और अब इस मौके को हमें समझने की जरूरत है। What exactly happened?
तो वहां पर असल तौर पर हुआ क्या? Now Peter met with Cornelius. और कर्नेलियस से मिला है पतरस, And now he is preaching to Cornelius. और अब वो यह तालीम दे रहा है कर्नेलियस को। Verse 34. और 34 आयत में, Before you the scripture, इससे पहले कि आप हवाले को पढ़ें, if you take some scripture to preach, और अगर आपने कोई भी हवाला लिया है तालीम देने के लिए, first know the background of the scripture. और पहले आपको उसके माजी में उसके गुज़िश्ता चीजों के बारे में समझ होने की जरूरत है। Why this scripture is written? क्यों ये जो कलाम है लिखा गया, Why this verse is written? क्यों ये आयत लिखी गई। As we take Acts chapter 10 verse 38, और जैसे कि हमने अमाल उसका 10 बाब उसकी 38 आयत देखी, now I'm reading from 34. और अब 34 से हम पढ़ेंगे। Then Peter opened his mouth और पतरस ने जुबान खोलकर कहा, and said, और कहा, of a truth, I perceive that God is no receptor of persons. और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। Hey, listen now. सुनिएगा, I pray let God open your eyes to understand. और मेरी दुआ है कि खुदा आपकी समझ को खोले ताकि आप इस कलाम को समझ सकें। Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no receptor of persons. और पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। God is God. और खुदा तो खुदा है, God is not according to you. और खुदा आपके मुताबिक नहीं हो सकता। God is God. खुदा तो खुदा है, Same God वही खुदा who is showing things to Cornelius. जो कुरनेलियस पे चीजों को वाजे कर रहा है, Same God showing things to Peter. वही खुदा जो पतरस पर चीजों को अयां कर रहा है। Now Peter understand another dimension. और खुदा की एक और डायमेंशन की समझ अब आ रही है पतरस को। Next verse. और अगली आयत, But in every nation he that fear him and works righteousness is accepted with him. बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। Now see the eyes of God. और देखें आप खुदा की आंख, Fearing God and walking in righteousness is a thing that attracted God. और खुदा से डरना और रास्तबाजी करना वो दो चीजें हैं जो खुदा को अपनी तरफ खींचती हैं। Now the verse 36. और 36 आयत में, The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all. और जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है, सुलह की खुशखबरी दी। Now that word I say ye know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. और इस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। Now the verse is here. और अब वो आयत मौजूद है। How? कैसे? Underline this word how. और इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा How? कि कैसे, How? कि कैसे, How? कि कैसे। Now the two persons are sitting together. दो लोग इकट्ठे बैठे हैं Now they are discussing the stuff of God. और वो खुदा की चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। Now Peter took a point. और पतरस ने ये नुक्ता उठाया, How God कैसे खुदा ने anointed Jesus of Nazareth. यीशु मसीह को मसा किया। Now they are not talking about anointing. और यहाँ पर वो मसा की बात नहीं कर रहे, They are talking about, और वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे मसा की। I know you are more anointed than others. और मैं जानता हूँ कि आप और ज्यादा मसाशुदा हो सकते हैं दूसरों से ज्यादा, You are more anointing than me. और मुझसे ज्यादा मसाशुदा हो सकते हैं, I am just a vessel of. और मैं तो खुदा का सिर्फ एक बर्तन हूँ। I know you are more than me. और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बेहतर हैं, It might be और हो सकता है God has anointed you.
कि खुदा ने आपको मसा किया हो, But I want to know लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कैसे how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power, who went going doing good. मैं जानना चाहता हूँ इस बात को कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदुस और कुदरत से किस तरह मसा किया, How? कैसे। Having the anointing of deliverance, और अब आपके पास रहाई देने की मसा होना, the anointing of healings, और शिफा देने का मसा होना, anointing of preaching, और आपको तालीम देने का मसा होना, anointing of visions. और आपको रोया देखने का मसा होना, I believe you have. और मुझे यकीन है आपके पास हो सकता है। How? कैसे। One statement और एक स्टेटमेंट that really confused me. और जो मुझे शक व शुबात में मुब्तला करती है, I always think about it. और मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूँ। Whenever you talk about a very highly anointed person, और जब भी आप किसी बहुत ही मसाशुदा बड़े आदम के बारे में सोचते हैं, when you say how you get this anointing, और आप कहते हैं कि कैसे तुमने ये मसा हासिल किया, he just flows in one sentence. और वो सिर्फ एक चीज में इसको बांध देता है It is a God's grace. कि ये खुदा का फजल है। Please tell us, sir, सर बराए मेहरबानी मुझे इसके बारे में बताइएगा, which grace you have. कौन सा फजल आपके पास है, Please explain. इसको प्लीज मुझ पर वाजिया कर दें। Don't say it is a God's grace. और ये मत कहिएगा ये खुदा का फजल है, Please explain the grace. और उस फजल आपको वाजिया करने की जरूरत है। Because the Bible is saying, and Peter is saying, oh, और देखिए कि खुदा कलाम मुकद्दस में कैसे पतरस कह रहा है कि कैसे मसा की, how God anointed कैसे किस तरह मसा किया खुदा ने Jesus of Nazareth यीशु मसीह नासरी को, with Holy Ghost and with power. और रूह कुदुस से और कुदरत से। Underline the second phrase in this verse. और दूसरा हिस्सा जो इस आयत का है उसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, Who went out और जो बाहर गया and doing good. और वो अच्छा करता, भलाई के काम करता। Before you went out to do things, और इससे पहले कि आप बाहर जाएं और कुछ करें, are you anointed? क्या आप मसाशुदा हैं? Are you aware how you anointed? और क्या आप ये जानते हैं कि कैसे आप मसाशुदा हुए? How? कैसे? Three things. Understand it. और तीन चीजें जिसकी समझ होनी चाहिए। My topic is understanding, not anointing. और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मसा नहीं है, मेरा टॉपिक है मसा की समझ। Understanding. और समझ बुझ होना मसा के बारे में। It is not a trick. और ये कोई ट्रिक नहीं है, It is not gimmicks. और It is not magic. और ये कोई जादू नहीं है। How कैसे God anointed? खुदा ने मसा की। Before you say I am anointed or that person is anointed. और इससे पहले कि आप कहें कि इस शख्स ने मुझे मसा किया, Before you say I am anointed, और इससे पहले कि आप कहें कि मैं मसाशुदा हूँ, and before you say this person is anointed, और इससे पहले कि आप कहें कि ये शख्स मसाशुदा this है, worshipper is anointed, और ये जो परस्तार है ये मसाशुदा है, you need to discover how. और आपको दरियाफ्त करने की जरूरत है कि कैसे। How? कैसे? So look at the verse how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost with him. और आए इस आयत को गौर से देखें कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदुस और कुदरत से किस तरह मसा की। Who went कौन गया? before going anywhere कहीं भी जाने से पहले to do things, चीजों को करना, you need to understand how. आपको चीजों को समझने की जरूरत है कि कैसे। How? कैसे? Deep it all the deep. घेराव को पुकार। They don't know each other, वो एक दूसरे को नहीं जानते, but we can see they both saw a vision. लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों ने उस रोया को देखा, They saw visions. और उन्होंने रोया देखी। The first person saw vision about second person. और एक शख्स ने दूसरे शख्स के बारे में रोया देखी,
Cornelius saw vision about Peter, और कर्नेलियस ने पतरस के बारे में रोया देखी, that he need to visit him. उससे जरूरत है कि वो उसके पास जाए। Now the things inside of you, जो चीजें आज आपके अंदर है the deepest things of और वो you, गहरी चीजें जो आपके अंदर मौजूद है anointing in you, और जो मसा आपके अंदर है, that is calling you to that another anointing. और वो आज आपको बुला रहा है एक और लेवल के मसा के लिए। The deep thing inside of you, और आपके अंदर जो गहरी चीज है, that is calling you to other deep things. और वो आपको बुला रही है और ज्यादा गहरी चीजों के लिए। See what happens next. और देखते हैं आगे क्या हुआ। Who went about doing good, और वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। now see, देखिएगा, and healing all that were oppressed of death. और इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। For God was with him. खुदा उसके साथ था, You need to understand. और आपको समझने की जरूरत है। God was with him. और खुदा उसके साथ था, He was not gifted by prophecy. और वो किसी नबूवत के तौर पर तोहफा नेमत नहीं मिली थी, Is not gifted by the tongues. और वो जुबाने के तौर पर जुबानों की नेमत. उसे जुबानों की नेमत नहीं मिली थी, He is not gifted by only healings. और वो सिर्फ शिफा के लिए उसको नेमत नहीं मिली थी, He is not only gifted by miracles. और उसे सिर्फ मोजज़ात की नेमत नहीं मिली थी, He is not only gifted by deliverance. और वो रहाई देने की नेमत सिर्फ उसे नहीं मिली थी। Only one gift Jesus was carrying. और एक वाहिद जो नेमत है वो उठाए फिरता था। When he got anointed, और जब वो मसा हुआ, he got one gift. That gift is God. और उसके पास एक वाहिद नेमत थी, वो थी खुदा। Oh, Namashandi. हालेलुया। When Jesus of Nazareth was anointed by God, और जब यीशु मसीह नासरी खुदा के जरिए से मसा पाता है, when God anointed Jesus of Nazareth और जब खुदा यीशु नासरी को मसा करता है with Holy Ghost and power, और सिर्फ रूह कुदूस और ताकत से, then God was with him. That is Emmanuel. और वो खुदा उसके साथ था जो कि इमानुएल है, God is with us. और खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज जीसस। So God was with him. और खुदा उसके साथ था, Not prophecy was him. और नबूवत इस वक्त उसके साथ नहीं है, Not miracles was with him. मोजज़ात उसके साथ नहीं है। Child of God. और खुदा के बच्चों, These things make Jesus superior to you. और ये चीज है जो कि सबसे अलग बनाती है यीशु मसीह नासरी को। Why he is above all. और क्यों है वो सबसे अफजल? He is not anointed cherubim. किसी भी फरिश्तेगान के जरिए से मसा वो शुदा नहीं, मनसूख रोबी नहीं है. वो ममसूक करोबी नहीं है, He is not anointed cherubim और वो ममसूक करोबी नहीं है, like Lucifer. वो लूसीफर की तरह ममसूक He is करोबी नहीं है, anointed by और God वो himself. खुदा की जात खुद उसको मसा करती है। But he is not anointed only. और वो सिर्फ वाहिद नहीं मसा शुदा, The God is himself with him. खुदा खुद उसके साथ है। He is gifted by God. वो खुदा ने उसको वो नेमत अता की, It's not just a gift. और वो सिर्फ नेमत शुदा ही नहीं, He have a God in him. और उसके अंदर खुदा खुद मौजूद है, He is filled with the Holy Spirit. और वो भरा हुआ है फिक्रों से, He is anointed by God. और वो खुदा से मसा शुदा है। Don't know someone is getting. और मैं नहीं जानता कि कोई इसको समझ रहा है या नहीं। He was carrying. और वो खुदा को अपने साथ लिए हुए, अपने अंदर लिए हुए। Oh, I am just explaining how. और मैं सिर्फ आप पे आज वाज़िया कर रही हूँ कि कैसे How? कैसे। Genesis chapter 1, और पैदाइश उसका पहला बाब, 2. उसका दूसरा बाब, You see
human being. और आप देखते हैं इंसान, God created human on his own image. और खुदा ने अपनी छवि पर इंसान को पैदा किया, Now the clay is there और अब मिट्टी वहां पर मौजूद है, and God breathes on him. और खुदा ने अपने नथों में से जिंदगी का दम फूंका, God breathed on him. और खुदा ने सांस फूंकी अपने, He blew और उसने सांस फूंकी on a clay. और उस मिट्टी पर सांस फूंकी। Child of God, खुदा के बच्चों, please. सुनिएगा, Anointing, it is not a game or gimmicks. और ये कोई गेम नहीं है या खेल नहीं हो रहा इधर। Oh, now a church is suffering. और आज का चर्च क्यों सफरिंग में है? People are showing anointing without understanding how. लोग आज अपने मसा को दिखा रहे हैं इस बात के बगैर कि कैसे, How? कैसे। I am not impressed by anointing of anybody. मैं किसी की भी मसा से जो है वो मुतासिर नहीं हुआ, I always see how मैं सिर्फ देखता हूँ कैसे or who और कौन anointed that person. उस शख्स को जिसने मसा किया। Adam आदम, received the breath और उसने उस सांस को मसूल किया, and he became living being. और वो जीती जान हुआ। Please listen, give concentration. और सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, If the breath comes on a clay और जब सांस आ रहा है मिट्टी पर, and the clay is standing up and becoming a human being, और वो मिट्टी खड़ी हो जाती है और एक इंसानी शक्ल ले लेती है, like an image of God, और बिल्कुल खुदा की छवि पर, by the breath, और उस सांस के जरिए से, like an image converted. और एक जो छवि है वो बन गई। See, and just think about it. और इसके बारे में आप गहरे तौर पर सोचिएगा, After a breath, और उस सांस के बाद just an image of God is created. और सिर्फ खुदा की छवि बनी है यहाँ पर। If God come himself in clay, और अगर खुदा खुद उतर आता उस मिट्टी में, if God and और अगर दाखिल हो जाता उस मिट्टी not में, his blow only, सिर्फ वो उस पे दम ना फूंकता, if God comes by himself, और वो खुद अपनी जात समेत उसमें उतर आता, could enter into clay. अगर वो मिट्टी में खुद उतर आता, If God enter into the clay in Maribana machine, और अगर वो उस मिट्टी में उतर आता, if God enter into womb called Mary, और मरियम के रहम में उतर आता, if अगर खुदा enter into clay, उस मिट्टी में उतर आता, and that clay is called Jesus. और उस मिट्टी को हम कहेंगे वो है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। He is speaking और वो है दूसरा आदम, not by the breath of God, सिर्फ खुदा की फूंकी रूह से ही नहीं, he is by God. और वो है खुदा के जरिए से। कैसे? God खुदा anointed Jesus यीशु मसीह को मसा किया, यीशु नासरी को, by the Holy Spirit. उस पाक रूह से और ताकत से और कुदरत से। Before you went out, इससे पहले क्या बाहर जाए, you need to understand आपको समझने की जरूरत है how God anointed you. कैसे खुदा ने आपको मसा किया। Who went about doing good. और वो भलाई करता। The most interesting thing about Jesus, that thing, the deep thing inside of me, triggered to deep thing of Jesus. और सबसे जो दिलचस्प बात है यीशु मसीह के बारे में कि वो गहरी चीज जो मेरे अंदर है, मैं उस गहरी चीज के बारे में जानना चाहता हूँ जो यीशु के अंदर है। He was not only anointed, वो सिर्फ मसाशुदा नहीं है, he was carrying God. और वो अपने आप में खुदा की जात को लिए हुए। हालेलुया। Let me tell you the salary of Jesus Christ. और आए मैं आपको तनख्वाह बताता हूँ यीशु मसीह नासरी की। What is the reward of Jesus और Christ? यीशु मसीह का रिवॉर्ड क्या है? Hold on. धीरज रखें। I think this revelation will just break something in your life. और आपकी जिंदगी में कुछ टूटेगा इस मुकाशफे के जरिए से।
Many anointed people are receiving things on this earth, और बहुत से मसाशुदा लोग हैं जिन्होंने बहुत सी चीजें खुदा से मौसूल की on this earth. इस जमीन पर। By your anointing, आपके मसा के जरिए से you can sell anointing आप बेच सकते हैं मसा को by money. पैसे के जरिए से। I saw it with my eyes. और मैंने अपनी जाती आंखों से इस चीज को देखा है। You can sell healings और आप शिफा को बेच सकते हैं because you have the anointing क्योंकि आपके पास मसा है, and you don't know how. लेकिन आप नहीं जानते कैसे। Genesis chapter 15 verse 1. और पैदाइश 15 बाप उसकी पहली आयत। This is the very, very deep revelation Lord revealed to me many years before. और आज से गुज़िश्ता बहुत से साल पहले खुदा ने ये मुकाशवा मुझ पर जाहिर किया। When I say, why God, you are not giving me the blessing of Jesus Christ. क्यों, मैंने जब खुदा से सवाल किया कि यीशु मसीह नासरी का मसा खुदा तू मुझे क्यों नहीं दे रहा, Why you are not giving me the blessing और वो बरकत क्यों नहीं दे रहा जो of Jesus? यीशु मसीह के पास है, Why you are giving me the blessing of Abraham to Jesus? और तू मुझे यीशु मसीह के जरिया से इब्राहिम की बरकत क्यों दे? Because क्योंकि that one thing was common in Abraham and Jesus the जो Christ. दोनों में एक चीज कॉमन है इब्राहिम और यीशु में, Because we are talking about a vision. क्योंकि हम यहाँ पर रोया के बारे में बात कर रहे हैं। Abraham saw a vision in Genesis 15. और पैदाइश उसके 15 बाब में इब्राहिम ने देखी। After these things, the word of the Lord came upon Abraham और इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ। in a vision, और रोया में saying, fear not, और उसने कहा खौफ न कर. और उसने फरमाया इब्राहिम तू मत डर, I am thy shield and thy exceeding great Amen. reward. आमीन, मैं तेरे सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। So the salary of Abraham was God himself. और जो इब्राहिम की सैलरी थी वो खुदा की जात खुद थी। But he is after serving God, और वो चीजें जो खुदा को सर्व करने के बाद हमें मिलती हैं, like a salary. वो एक तनख्वाह के तौर पर आप कह सकते हैं। Many pastors are on salary now. और बहुत से इस वक्त पास्टर हजरात हैं जो कि तनख्वाह पर हैं। They take salaries from church and denomination. वो सिर्फ डिनोमिनेशन से और चर्च से अपनी तनख्वाह वसूल But करते हैं। the day you know how God has anointed you, और जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि कैसे खुदा ने आपको मसा किया, if you know how, अगर आप जानते हैं कैसे, then you will. Now same thing happened to my Lord Jesus. और यही चीज अब हुई है वाकया मेरे यीशु के साथ। Now the God was with him. और खुदा अब उसके साथ है God was reward. और खुदा ही उसका इनाम। Now is next. और आगे क्या होगा? Why people are going to the home of Abraham? और क्यों लोग जाएंगे Abraham की गोद. इब्राहिम की गोद में? Why they are going to Abraham's? और क्यों वो जा रहे हैं इब्राहिम की गोद में? Because he is a part of God. क्योंकि वो खुदा का हिस्सा है। He didn't serve for money. और उन्होंने खुदा को सर्व पैसे के लिए नहीं की। They didn't serve for their famous things. और उन्होंने मशहूर होने के लिए या अपनी चीजों को मशहूर करने के लिए नहीं They किया। walked with God for a purpose. और वो किसी मकसद के तहत खुदा के साथ चले। They know how God anointed them. और वो जानते थे कि खुदा ने उन्हें क्यों मसा किया हुआ है And what is the purpose of the anointing? और उनके मसा का क्या मकसद है? To receive God. कि खुदा को मौसूल कर With him, Malande और Finakandis. खुद उनके साथ है। So Jesus of Nazareth, और यीशु मसीह नासरी, if people believe or not, लोग यकीन करें या ना करें, you say your Bible doesn't say Jesus is God. और आप कहें, आपकी बाइबल कहे यीशु मसीह खुदा है, Whatever the people said, जो कुछ भी लोग कहते हैं, if you know अगर आप जानते हो the last service of Christ, और यीशु मसीह की जो आखिरी सर्विस है, when he died and rose up, और जब वो मर गए और जी उठे, now the reward of believer is eternal life. और एक ईमानदार का जो इनाम है वो है उसकी हमेशा की जिंदगी। The reward of Jesus is not eternal life. जो यीशु मसीह का इनाम है वो हमेशा की जिंदगी नहीं, The reward of Jesus Christ is to become a God for Christians. और वो इनाम यीशु मसीह नासरी का ये है कि वो खुदा बने मसीहत के लिए।
लिए So now he is God himself. और वो खुदा है मसीहत के लिए। So how God anointed Jesus of Nazareth और कैसे खुदा ने मसा किया यीशु मसीह with नासरी Holy को Ghost and power. और क्रूस से और ताकत से। So now if you see power in the Old Testament, that is God. और पुराने हदनामे में उस कुदरत और ताकत को देखते हैं तो वो खुदा है। So God is eternal power. और खुदा है एक हमेशा की ताकत। And the Holy Spirit is the power in New Testament. और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि पाकरू वो ताकत है। In the New Testament. और नए अहदनामे में वो ताकत पाकरू है। So now power of the Old Testament is, और जो पुराने अहदनामे की ताकत है वो तो ताकत है। in the New Testament, the Holy Spirit. और नए अहदनामे में जो ताकत है वो है पाकरू। Jesus said, you shall receive और यीशु मसीह ने कहा कि तुम ताकत पाओगे when the Holy Spirit comes और on. जब पाकरू तुम पर उतरेगा तुम ताकत पाओगे। So you receive the power. तुम लोगों ने मौसूल किया Receive the Holy और Ghost. तुमने पाकरू को मौसूल किया Receive Elohim, और तुमने मौसूल किया एलोहीम को God. और तुम लोगों ने खुदा बाप को मौसूल किया। Receive the Holy Ghost. पाकरू को मौसूल किया। Now the main thing is Jesus. और अब जो सबसे अहम चीज है वो है यीशु मसीह नासरी। He is the bridge of power and anointing. और वो है वो पुल उस पावर और मसीह का। The day you know how God anointed Jesus of और Nazareth, जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि कैसे खुदा ने मसा किया यीशु मसीह नासरी को। if you are anointed today, और अगर आज आप मसाशुदा है and if you know how, लेकिन अगर नहीं जानते कि कैसे, the thing is understanding. और वो चीज है समझ। The day you understand the anointing, और वो दिन जिस दिन आपने समझ लिया मसा को, you will not run after और anointings. आप मसा के पीछे नहीं भागे। You will not run anointed to anointed, anointed to anointed, oil to oil, pastor to pastor, prophet to prophet. तो फिर आप नहीं भागेंगे कि मसा से मसा तक, तेल से तेल, और एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट। You will not run. और आप नहीं भागोगे। If you know you are anointed, और अगर तुम जानते हो कि आप मसाशुदा हो how you are anointed, और कैसे मसाशुदा हो, and who anointed you, किसने आपको मसा किया है, so that you will do good. फिर आप अच्छा करोगे। So there is one, let me finish it. और मैं इसको इस पर काम करूंगा इसका। The day उस दिन I realized मैं ये जान गया about that scripture. इस कलाम के बारे में। When Master was with his disciple on the mountain, और जब पहाड़ पर आका अपने शागिर्दों के साथ था and the Moses and Elijah there, और वहां पर मूसा और एलिया थे, but some other anointed disciple, Mandona, लेकिन कुछ और मसाशुदा शागिर्द, like they are anointed child of God, वो खुदा के बच्चे थे, मसाशुदा anointed from Jesus the Christ. यीशु मसीह के जरिया से, He sent them, और उसने उन्हें भेजा। but there was issue there. और वहां पर एक मसला था, The man came to Master. और जो शख्स आका तक आया He said, उसने कहा, your disciples तेरे शागिर्द was not able to correct this person. इस शख्स को सही ना कर सके। Question. सवाल यहाँ पैदा होता है, Who anointed? उनको किसने मसा किया, How they are anointed? कैसे वो मसाशुदा हुए। Only 3 disciples. सिर्फ 3 शागिर्द। Don't take me wrong. और मुझे गलत मत समझिएगा, Don't take me wrong. और मुझे गलत मत समझिएगा। The disciples who were casting out devils शागिर्द जो कि बदरूहें निकाल रहे हैं in the presence of Jesus, यीशु मसीह की मौजूदगी में, after Jesus, यीशु मसीह के बाद, they were not casting out. और वो नहीं निकाल सके, You can't see them, और आप उन्हें नहीं देखेंगे, but you will see लेकिन आप उन्हें देखेंगे, those who were with him on the mountain. उनको जो उस वक्त उसके साथ पहाड़ पर मौजूद थे, That was a Peter. और वो था पतरस, Yeah, that was a Peter. और वो था पतरस। Now Peter is saying that, oh my, अब पतरस कह रहा है no, Jesus of Nazareth. कि कैसे यीशु मसीह नासरी ने, How God anointed Jesus of Nazareth. कैसे खुदा ने यीशु मसीह नासरी को मसा किया, Because he knew how. क्योंकि वो जानता था कैसे।
because he was with him on the mountain. क्योंकि वो पहाड़ पर वहां पर मौजूद था He was not with the company who failed to deliver us. और वो उनके साथ नहीं था जो फेल हो चुके थे उन लोगों को रहाई देने में। The day you are preaching और वो दिन जब आप तबलीग शुरू करते हैं without anointing and without knowing how, और मसा के बगैर और ये जाने के बगैर कि कैसे, the things will be. तो चीजें नामुकम्मल रहती हैं। I saw many preachers. और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो तबलीग करते हैं They are under warfare and attacks. और वो हमेशा जंग में रहते हैं और उन पर मुख्तलिफ अटैक्स होते रहते हैं। They are went out to do good like Jesus. जाते तो है यीशु कितना अच्छा करने, They are doing. वो अच्छा करते भी हैं They are going out for gospel और वो जाते हैं अंजील की मुनादी के लिए बाहर, without knowing how. ये जाने बगैर कि कैसे, How they are how they got anointing. कि वो कैसे मसा शुदा हुए। The greatest revelation of today और आज का जो एक बहुत ही अजीम मुकाशवा है वो ये is understanding. और वो है समझ होना। So look at the group of disciples who were not able to deliver reports. और आप देखें कि उस ग्रुप को जो कि नहीं निकाल सका बदरूहों को, शागिर्दों का ग्रुप, Issue was not in the anointing. और मसला उनके मसा में नहीं था Issue was not in the disciples and the master. और आका में और उनके मालिक में और शागिर्दों में मसला नहीं था। The issue was in the word how. और मसला था लफ्ज कैसे। Yes, you can do things by gift and anointing. हाँ, आप चीजों को कर सकते हैं नेमतों से और मसा से। Don't run after gifted people. और आज आप नेमत शुदा लोगों के पीछे मत भागे। Gifted man can give you gift. और एक नेमत शुदा शख्स आपको नेमत दे सकता है। Yes, it is transferable. और हाँ, ये हो सकता है कि एक शख्स से दूसरे को मिल जाए। Paul said, और पौलुस कहता it है, is my desire to come to you and give you more gift. और पौलुस कहता है कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और मैं नेमतें बताऊं। Yes, you can get gifts. और हाँ, आप आज नेमतों को मौसूल कर सकते हैं। Thing you need to understand. और वो चीज जो आपको समझने की जरूरत है God is with him. कि खुदा उसके साथ। Yes, Lucifer was anointed cherub. ये बात सही है कि लूसीफर भी मसाशुदा है, But God is not with him. लेकिन खुदा उसके साथ नहीं है। God is with you now. और आज खुदा आपके साथ है। Now you need to understand. और आज आपको ये समझने की जरूरत है, You need to know how God anointed you. आपको ये समझने की जरूरत है कि खुदा ने आपको मसा कैसे किया। So understanding of anointing. और मसा की जो समझ है, Last point and I'm closing it. और मेरा आखिरी पॉइंट और इसके बाद हम इसको बंद करेंगे। If you understand the anointing of a man of God, और अगर आप किसी मर्द खुदा की के मसा को समझ जाते हैं, then you can take the anointing. फिर आप उस मसा को ले सकते हैं। That's why Christianity is not by force. और इसी वजह से जो है वो मसीहत आपको फोर्स करने से मुताबिक नहीं है। You will never see any kind of thing that people kill people to accept Christianity. आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि मसीहियों ने इसको कि वो मसीहत को कबूल कर ले, Because our God क्योंकि हमारा खुदा is not afraid of anybody. वो किसी से डरता नहीं। My Jesus is not afraid of death. और मेरा खुदा जो है वो, मेरा यीशु किसी मौत से नहीं डरता। Hey, the scripture that I love most. और वो कलाम मुकद्दस का वो हिस्सा जो मुझे बहुत पसंद है, The Bible says Jesus spoiled the devil on the cross. और कलाम कहता है कि शैतान का बरमला तमाशा यीशु ने बनाया सलीब पर। On the cross, he spoiled his things of to spoiling believers. और उसने उनका शैतान का बरमला तमाशा बनाया सलीब पर। How? कैसे? Because Jesus is not afraid of anything. और क्योंकि यीशु मसीह नहीं डरता था किसी चीज से। That is why ये क्यों है? Christianity and the believing in Christ is not by force. और जो मसीहत है और यीशु मसीह पर ईमान लाना है वो हम किसी को ताकत के जोर पर नहीं करवाते। It is by understanding of Jesus the Christ. और ये है यीशु मसीह के समझ जाने। If you are Christian, और अगर आज आप मसीही हैं, you are anointed by
और आप खुदा से मसाशुदा है। Understanding of Christ is understanding of anointing. और यीशु मसीह को समझ जाना मसा को समझ। So before you follow a pastor or a preacher or a spiritual father, और अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल फादर को या पास्टर को फॉलो कर रहे if हैं, you are following a preacher, और अगर आप किसी तबलीग करने वाले को फॉलो कर रहे हैं, you need to know how God has anointed you. और आपको जरूरत है इस बात को समझने की कि खुदा ने उसे कैसे मसा किया है। The anointing you don't understand, और वो मसा जिसकी समझ आपको नहीं होती, you can't get that anointing. और आप उस मसा को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। The anointing you understand, और वो मसा जिसकी आपको समझ आ जाती है, you can get it. आप उसे हासिल कर सकते हो। Why Jesus was doing the things of God? क्यों यीशु मसीह खुदा की चीजें कर रहे हैं, Why Jesus was doing the things only God can do? और यीशु मसीह सिर्फ वाहिद है जो वो चीजें कर सकते हैं जो खुदा कर सकते Because when the anointing came of Jesus of Nazareth, हैं। और जब यीशु मसीह नासरी पर वो मसा उतरा, he understand not anointing, he understand the. उसने सिर्फ मसा को ना समझा बल्कि उसने खुदा को समझा। When he understand God, और जब उसने खुदा को समझा he was doing the things of God. और उसने खुदा की चीजों को करना शुरू किया, When he understand the anointing, और जब उसने मसा को समझा, he was operating in the dimensions of God. और वो खुदा की डायमेंशन में मूव करना शुरू हुआ। So the time you understand the anointing upon your life, तो जब आप उस मसा को जो आपकी जात के ऊपर है समझ जाते हो, and that anointing will move into the realm of need. और फिर वो जरूरत के आलम में आपको ले जाती है। If in your church the healing is needed, और अगर आज आपके चर्च में जरूरत है शिफा की, and if you know the God who heals, और अगर आप खुदा को जानते हो जो शिफा दे सकता है, and if anointing is on you, और उसका मसा आपके ऊपर है, that anointing will come into the healing's anointing. और वो तब्दील हो जाएगी आपको शिफा देने वाले मसा में। Yes, why you need to understand the anointing. इस वजह से आज आपको जरूरत है मसा को समझने की, So need to understand the anointing. और समझने की जरूरत है आज मसा को। The anointing you don't understand, और वो मसा जिसकी आपको समझ नहीं, you can't get the आप उसे anointing. नहीं हासिल कर सकते। So wherever you are, जहाँ कहीं भी आज आप देख रहे हैं, wherever you are, और जहाँ कहीं आप हैं, let God open your eyes to understand anointing. और मसा को समझने की आंखें खुदा आपको अता करे। How God anointed Jesus of Nazareth और कैसे खुदा ने मसा किया यीशु मसीह नासरी को, with साथ Holy Spirit and power. पाखरू और कुदरत के साथ। Child of God, खुदावन के बच्चों believers, और ईमानदारों lovers of Christ, और यीशु मसीह के प्यार करने वालों, listen. सुनिएगा। Understanding is a key of operation of anointing. और जो समझ है वो चाबी है Operations of anointing. और मसा को ऑपरेट करने की। If you want to operate in God's power, और अगर आप खुदा की ताकत को ऑपरेट करना चाहते हैं, you need to understand आपको समझने की जरूरत है how, कैसे, which kind of anointing you are carrying. और किस किस्म का मसा है जो आप लिए हुए हो, What is your understanding about? और खुदा के बारे में आपकी समझ क्या है। The last point. और आखिरी पॉइंट, If your target is money, if your target is your famous food, if your target is your personal desires, और अगर आज आपकी ख्वाहिश है पैसा, अगर आज आपकी ख्वाहिश है मशहूर होना, या अगर आपकी जाती ख्वाहिशात आपका मकसद है by using your anointing, कि मसा को इस्तेमाल करके इन तीनों चीजों को हासिल करना, or if your target is to do whatever you want to do, और कोई भी चीज आपकी टारगेट हो सकता है जो आपकी ख्वाहिश है, I know मैं जानता हूँ you have anointing, आपके पास मसा है, you can do it, आप कर सकते हो, but God is not with you. लेकिन खुदा आपके साथ नहीं। So the purpose of anointing और मसा का जो मकसद है to benefit the church, कि वो चर्च को फायदा पहुंचाए, to heal the sick, कि वो बीमारों को शिफा बख्शे, doing good, अच्छा करे, casting out death, और बदरूहों को निकाले, protecting the people of. खुदा के लोगों की हिफाजत करे। Let people speak about you in the ways of good. और आए हम लोगों को बात करने दे आपके अच्छे कामों के बारे में। So try to understand anointing.
और समझने की कोशिश कीजिएगा There is मसीह much more. और इससे भी ज्यादा है। I will take time in this week to teach you more about understanding. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वक्त निकाल कर इस हफ्ते में आपको और ज्यादा मसा के बारे में तालीम दे सकूं। If you are coming to this platform, और अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं there is deepest thing in you that is calling you to deepest thing on this church. और बहुत ही गहरी चीज है आपके अंदर जो आपको उस गहराव से पुकारी है जो इस चर्च के अंदर So deepest call and deepest. और गहराव को पुकारती है। So that is a thing, that is a key of anointing. और ये है मसा की चाबी। If you are attracted to that kind of और anointing, अगर आप आज उस किस्म के मसा के लिए अट्रैक्ट हैं तो फिर the आपके लिए thing is वो आपके अंदर है। God bless you, shalom. और खुदावंद आप सबको बरकत दे। शालोम। Bless you, shalom. Open your mouth and pray. और अपने मुंह को खोलिएगा और दुआ कीजिएगा। Ushandarabasa. Korabashike. So shanterebus.